तो हेलो बच्चों, आज हम आपको समझाएंगे या आप समझेंगे माइकलिस मेंटन इक्वेशन का डेरिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेट के लिए और बायोकेमिस्ट्री के लिए और लाइफ साइंसेस के लिए। हमें माइकलिस मेंटन इक्वेशन के ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमको उसका पता ही नहीं होता है कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसका सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमको कोई भी फॉर्मूला जो इसका है वो मेमोराइज नहीं करना है, वो हमको डिराइव करना है। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन एंड slowly build the equation step by step. Okay, so let's begin. This is step number 1. अब सबसे पहले what happens, enzyme plus substrate forms ES complex, that is enzyme substrate complex, which breaks down to enzyme and product. So what is E? E represents the enzyme, S represents the substrate. So when enzyme binds to the substrate, it forms enzyme substrate complex ES. This complex can break apart and give us enzyme and substrate again this way, or it can proceed to form the product. Now this is step 2. I hope step 1 is clear to everybody. Now moving on to step 2. We will take into consideration this equation. हम इस equation पे ध्यान देंगे. ES breaks down into E plus P. We have written the half of the equation of step 1. Now rate of product formation. Rate of product formation is what? V0 is equal to K2 ES. Okay. So what happens here? This is reaction velocity and it depends on the concentration of the enzyme substrate complex. So what does this equation suggest? कि जो enzyme है उसकी reaction velocity depend करेगी enzyme substrate complex के ऊपर. अब सवाल ये उठता है कि how is ES formed? तो now we move on to step 3. How ES is formed? In the first step, E plus S will form ES. So now what? Rate of ES formation. Rate of ES formation, let it be K1, E and S. So this is the rate at which ES is being formed. Step 4. Now here what we see that ES can disappear in two ways. First, ES breaks down separately to enzyme and substrate. So what is the rate here? Rate would be K minus 1 ES. Okay. This is the first way. And what happens in the second way? ES is forming the product. ES is forming the product. So in this case, what would be the rate? Rate would be equal to K2 ES. Now what are K1, K minus 1 or K2? These are the
rate constants. Okay. Now, formation of ES complex. How it is formed? Here in this equation, it has been formed. So we will write it K1 ES, and what happens in the disappearance state? That is K minus 1 ES plus K2 ES. See, these are the key steps. ठीक है, लेट्स एक्सप्लेन इन हिंदी. ये ES कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसका रेट ऑफ कांस्टेंट हम लोगों ने शुरू में किया था, ये था K1 E और S, इसको हमने नोट किया. और जो गायब हो रहा था वो दो तरीके से गायब हो रहा था, ये भी हम लोगों ने देखा. एक तरीका तो उसका ये था, एक तरीका ये था. तो उन दोनों को हमने जोड़ करके लिख दिया कि K माइनस 1 ES प्लस K2 ES. आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर. अब हम लोग दूसरे स्टेप पे जाते हैं और वो हो जाएगा स्टेप 5. स्टेप 5 बेसिकली क्या है? स्टेडी स्टेट अजम्पशन है. अज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं. नाउ एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्टेडी स्टेट अजम्पशन प्रिंसिपल, क्योंकि आफ्टर अ वेरी शॉर्ट इनिशियल पीरियड concentration of ES becomes approximately constant. In simple words, what you can say, ES is being formed at approximately the same rate at which it is appearing. इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही शुरुआती इनिशियल स्टेज के लिए जो कंसंट्रेशन था ES का वो कांस्टेंट रहता है स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल के हिसाब से. क्यों? क्योंकि जिस दर से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसी दर से वो गायब भी हो रहा है. ये अभी हमने देखा यहां पर. अब क्या हुआ? अब हमने क्या किया था कि डिसअपियरेंस की अगर हम बात करें कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ES, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ES, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग? K1 ES is equal to K minus 1 ES plus K2 ES लिख सकते हैं. क्योंकि क्या हुआ कि हमने अभी बताया कि जिस हिसाब से वो बन रहा था ये और जिस हिसाब से वो गायब हो रहा था, दोनों कांस्टेंट है. ये दोनों कांस्टेंट हमने कर दिए, दोनों तरफ से इक्वल कर दिया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है. ये अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन यहां पर थी K1 ES जो हम लोगों ने शुरू में देखी थी, फर्स्ट इक्वेशन. और ये जो दो तरीके थे जो हम लोगों ने देखे थे, ये दोनों तरीके गायब होने के, तो ये दोनों तरीके और ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगी. मतलब एक आप ये मान के चलिए कि ये इक्वेशन थी जिसके ऊपर हमने टिक लगा दिया है, और दो इक्वेशंस ये बन रहा था और ये दोनों गायब हो रहा था, तो ये दोनों आ करके यहां पर इक्वल हो गया. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है स्टेडी स्टेट अजम्पशन के हिसाब से. अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? ES दो जगह पर कॉमन है, तो हमने ES को कॉमन ले लिया. तो हमने क्या किया? K1 ES इज इक्वल टू, यहां पर क्या कर लेंगे? K माइनस 1 प्लस K2, और हमने क्या किया? कॉमन लिया. किसको? ES को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि यहां पर दोनों जगह पर ES था. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको. अब हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो Km है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सुना है. यही है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट.
ठीक, तो Km की वैल्यू अगर हम रेट कांस्टेंट के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो Km हम कैसे कह सकते हैं, K-1 प्लस K2, ये देखिए यहां पर था K-1 प्लस K2 और K1 नीचे चला आएगा जब हम राइट हैंड साइड पे इसको लेकर के आएंगे लेफ्ट साइड से, तो ये हो जाएगा नीचे। तो ये रेट कांस्टेंट्स जो हैं ये पूरी K1 K-1 प्लस K2 और अपॉन K1, ये हमारा पूरा का पूरा Km के टर्म्स में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को जो हमने ऊपर बनाई थी यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट, ये वाली इक्वेशन फिर हम टिक लगा दे रहे हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट वाली जो इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किया, इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 और इसको हमने क्या किया, इसको अपॉन K1 किया और इस तरीके से यहां पर ES लिख सकते हैं ना। आप देखिए हमने क्या किया, हमने सिंपली क्या किया कि ये ES जो था ये यहां पर रख दिया, ये K-1 प्लस K2 ये कर दिया और ये K1 हमने नीचे ले आया। जब हम इधर ले जाएंगे इस इक्वेशन की तरफ तो ये K1 अपने आप नीचे जाएगा और ES को हमने वैसे ही लिख दिया। ये इस इक्वेशन की बात थी। अब क्या कर सकते हैं हम कि ये जो पूरा टर्म था इस इक्वेशन में, ये वाला ये पूरा क्या था, ये Km था, तो उसको हम Km से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम वही करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट अलग अलग लिखकर Km इसकी जगह लिख करके और यहां पर लिख देंगे ES। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हमको मान लीजिए ES को इधर करना है तो हम ES को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, ES इधर शिफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया, ये है ये वाला E जो मैंने पहले सॉरी S लिख दिया था, ये E ये S और अपॉन Km नीचे ही रहेगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ। कुछ नहीं किया, इसको हमने सिंपली रीअरेंज कर दिया है। ES इस तरफ गया, मतलब ये इसको अगर हम लेते हैं वैल्यूज तो ये दोनों एक तरफ रहेंगे और Km अपने आप नीचे चला आएगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ES है ये इसको अगर हम फ्री एंजाइम के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बट वी स्टिल डोंट नो द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री एंजाइम। तो अगर हम फ्री एंजाइम के उसमें लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो अब हम अगले स्टेप पे मूव करते हैं जो कि स्टेप 6 है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट एनी मोमेंट टोटल एंजाइम एग्जिस्ट्स इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में टोटल एंजाइम एग्जिस्ट करती है। सम एंजाइम इज फ्री फॉर्म एंड सम एंजाइम इज इन बाउंड फॉर्म। बाउंड फॉर्म मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो अभी हमको क्या फाइंडिंग पता चली कि टोटल एंजाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो मिला आपको फ्री एंजाइम और दूसरा क्या मिला आपको बाउंड एंजाइम मिली। और बाउंड एंजाइम क्या थी, वो थी ES के फॉर्म में। ये हमको फाइंडिंग पता चली। तो इसी को हम लोग फॉर्मूला थोड़ा सा बना लेते हैं। टोटल एंजाइम को हम लोग लिख देते हैं ET, टोटल एंजाइम इज इक्वल टू E, ये हो जाएगा फ्री एंजाइम और प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि बाउंड एंजाइम थी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये एंजाइम जो एक समय पे मौजूद होगी उसकी वैल्यू क्या है, इसको फिर से रीअरेंज किया तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एंजाइम इधर चला जाएगा तो ET माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये इधर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हुए अब हमको मिल गया, इस पे हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि हमारे पास एंजाइम मिल गई जो हम चाह रहे थे कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। अब फिर से हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, स्टेप 7।
इसमें हम लोग क्या कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं कि ईएस का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो अभी हमने जो शुरुआत में इक्वेशन आपने पीछे लिखी थी, वापस से लिख दे रहे हैं कि आप यहां तक पहुंच गए थे। एंजाइम सबस्ट्रेट इज इक्वल टू ई एस सॉरी ई एस अपॉन के एम। ये पीछे हमने इक्वेशन निकाली थी यहां तक आके। और एक इक्वेशन पीछे हमने और लिखी थी जो एंजाइम के टर्म्स में थी, जो थी ये। अब क्या है, हमने क्या करना है, जो ईएस की वैल्यू है इस इक्वेशन में, ये दोनों इक्वेशन को हम कंसिडर करेंगे। ई एस इज इक्वल टू, यहां पर जो ईएस की वैल्यू है, ई एस इज इक्वल टू, यहां पर ई की वैल्यू में हम ये पुट करेंगे। ई की वैल्यू यहां पे हमने क्या निकाली थी, ई टी माइनस ई एस। तो बस ई की जगह हम लिख देंगे ई टी माइनस ई एस, ठीक। और इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। और अभी भी हमारे पास एक सबस्ट्रेट बच रहा है, इसको हमने एस किया और यहां पे क्या किया, हमने किया के एम। इतना समझ में आया आपको? अब हमने क्या किया, के एम को हम इधर ले गए, तो के एम ई एस इज इक्वल टू, ये एस देखिए, ये इसी इक्वेशन का था एस, सिर्फ हमने ई की वैल्यू यहां पर रखी है। अब इस एस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई टी एस बनेगा। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा ई एस को भी एस से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन के एम। अब क्या करना है, ये माइनस वाला जो टर्म है वो हम इधर लेके जाएंगे। सॉरी, ये के एम तो हम लोग हटा ही चुके हैं, यहाँ तो के एम हमने लेके जा चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ के एम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये के एम तो हमने ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। तो ये माइनस वाला टर्म इस तरफ लेके आते हैं, इसको प्लस बना देते हैं कि एम ई एस प्लस ई एस एस इज इक्वल टू ई टी और एस। समझ में आ गया ना? What we have done is we have shifted this negative term towards left hand side and it becomes positive. Now what happens? Again we can see ES is common in both. So we take ES common in both sides. So what remains here? KM plus S remains here. यहाँ ES अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा KM और S बचा, और इधर क्या बचा, ET और एस। अभी क्या करना है, हमने अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को जो हमने निकाली है, दोनों साइड्स को डिवाइड बोथ साइड्स बाय के एम प्लस एस। ये के एम प्लस एस देख रहे हैं ना, दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे तो ये तो कट जाएगा इस तरफ से, के एम प्लस एस डिवाइड करेंगे अपॉन के एम प्लस एस, तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, ई एस बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, ई टी और एस तो बच ही रहा है, और यहाँ पे अपॉन के एम प्लस एस आ जाएगा। Now what we have done, we have calculated the concentration of enzyme substrate complex. इस केस में हमने क्या किया, हम लोगों ने enzyme substrate complex का concentration calculate कर दिया। अभी हम स्टेप 8 पे आते हैं, ये स्टेप नंबर 8। तो अब हम पहली इक्वेशन पे वापस, अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने लिखा था यहां पर, ये वाली इक्वेशन हमने सबसे पहली वाली निकाली थी, V0 इज इक्वल टू K2 ES। इधर इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, जो एंजाइम सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन था उसके लिए हमने ये लिखा था। तो इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं, V0 इज इक्वल टू K2 ES। ये हमने यहीं से स्टार्ट किया था एक्चुअली, तो ये हमने लिखा V0 इज इक्वल टू K2 ES। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमको ES की वैल्यू पता है, ये हमने ऊपर निकाली है ES की वैल्यू, इस इक्वेशन में हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो V0 क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो V0 इज इक्वल टू
इसकी जगह हम लिखते हैं, उससे पहले एक चीज और कर लेते हैं। हमको ये भी पता था कि ये अच्छा, इस इक्वेशन को लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग सिंपली। तो हम लोग ने क्या किया, V0 इज इक्वल टू K2, यहां तक लिखा हमने। और ES के बजाय हम क्या लिखेंगे, हम ये सब लिखेंगे जो हमारे पास था, इतना पोर्शन। तो हम लिख रहे हैं ET, यानी K2 से मल्टीप्लाई हुआ ET S अपॉन KM प्लस S, ये हमने लिखा। तो अब क्या हुआ, सिंपली हमको मिल गई जो इक्वेशन हमको चाहिए थी, V0 इज इक्वल टू K2 ET S अपॉन KM प्लस S। ठीक है, अब फाइनली स्टेप 9 पे आते हैं और हम इंट्रोड्यूस करते हैं V मैक्स टर्म को, जो कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ये, और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, V मैक्स जो मैक्सिमम होगी वो होगी K2 इंटू ET, है ना, क्योंकि ये टोटल एंजाइम जो है उसका रेट को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी ये वाली V0 इज इक्वल टू K2 ETS अपॉन KM प्लस एक्स, तो हमने इसमें क्या कर देना है, V0 इज इक्वल टू K2 ET, ये K2 ET है, इस K2 ET की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V मैक्स लिख सकते हैं, और ये S की जगह तो S ही रहना है, अपॉन KM प्लस S। ये फाइनल जो है इक्वेशन है माइकलिस मेंटन की, जहां पे V0 इनिशियल वेलोसिटी है, V मैक्स फाइनल वेलोसिटी है, S है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और Km जो है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली वो कितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसपे कि वेलोसिटी याद ही हो जाती है, वो हम बाद वाले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, और प्लस सबस्ट्रेट। तो हमको एक्चुअली 4 इक्वेशन से मतलब था, अगर आप रिकैप में जाते हैं तो वो 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कौन सी थी। एक तो हमने रखी थी फर्स्ट वाली V0 इज इक्वल टू K2 ES, यहाँ जो शुरू किया था हम लोगों ने इसी से, ये इक्वेशन थी हमारी V0 K2 ES। दूसरा हम लोगों ने किया था, बताया था, जहाँ पे हम लोगों ने Km को इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था Km इज इक्वल टू K-1 प्लस K2, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के टर्म्स में हमने Km को निकाला था, ये सेकेंड इक्वेशन थी। फिर तीसरी इक्वेशन में टोटल एंजाइम निकाली थी कि ET इज इक्वल टू E प्लस ES, क्योंकि टोटल एंजाइम जो होती है या तो वो फ्री फॉर्म में रहती है या वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड रखती है। और फाइनली हमने इक्वेशन निकाली थी कि ES इज इक्वल टू ET S अपॉन KM प्लस S, ये निकाली थी। और इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया था, तो ये इक्वेशन क्या बन गई थी, V0 इज इक्वल टू K2 ET S अपॉन KM प्लस S, है ना। और चूंकि V मैक्स जो था वो हमने देखा था कि V मैक्स जो था वो क्या था, K2 ET था, ये इक्वेशन थी K2 ET वाली, ये इक्वेशन थी K2 ET वाली, इसको वापस नहीं लिख रहा है। तो अब हमने क्या मिला, तो ये इक्वेशन, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, चलिए लिख ही दे रहे हैं आप लोगों के लिए कि V मैक्स इज इक्वल टू K2 ET, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनली निकाल देते हैं कि V0 इज इक्वल टू V मैक्स S अपॉन KM प्लस S। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। तो यहाँ पे ये 4 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक,
2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 भी। ये 6 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट थी। इन 6 इक्वेशंस की मदद से हम लोगों ने ये पूरा डिराइव किया और हम लोगों ने फाइनली ये सीक्वेंस आप समझ लीजिए कि रिएक्शन से स्टेडी स्टेट माना था। ईएस फाइंड आउट मतलब सीक्वेंस क्या थी, सबसे पहले हमने रिएक्शन लिखा कि एंजाइम, ये ओरिजिनल रिएक्शन था कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिल रहा है, ईएस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये पी में जोड़ रहा है और देर डिसअपियर हो रहा है। तो ये रिएक्शन था। फिर स्टेडी स्टेट अजम्पशन हम लोगों ने किया, फिर हम लोगों ने ईएस फाइंड आउट किया, फिर हम लोगों ने वेलोसिटी इक्वेशन उसको सब्सटीट्यूट किया और फाइनली हमारी माइकलिस मेंटन इक्वेशन बन गई। और अब हम लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे या हम आपको कुछ नंबर्स देकर के भी बताएंगे जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और भी क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।